نقصان۔ وری وادو پتہ گریز کن لوکن سرکار طرف بجلی فراہم، مقامی لوکو طرف خوشی ہند اظہار، انتظامیہ شکریہ ادا۔ تو بجلی ہز گژھے ست کپوارس مز لوک پریشان، ضلع مز لوکن معقول بجلی فراہم کرنچ لوکو انتظامیہ منگ۔ السلام علیکم ناظرین، رات سز 9 بجے تو قشر خبر نامہ ہیت چھس بہ ساحل امین تہندس خدمتس مز حاضر تو پیش خبرن ہند تفصیل۔ وادی کشیر مز یت پتمن کیژن دون مز نار وارداتن مز اضافہ وچھنہ آو، تت آز شام پت ورملس مز پیپلز ایجوکیشن ٹرسٹچ عمارت مز اچانک نار ظاہر سپدمت، یم کس زدس مز عمارتک ہرم پور ہینہ آو۔ یدوے مقامی لوکو تو فائر سروس عملہ طرف نارس پہ قوبو پراؤنہ آو، تاہم چھ نار وارداتس مز سٹھائی نقصان سپدمت۔ ڈی جی صاحب کو آنا تھا جی، بچے بالکل تیار تھے، ہم نیچے والے کمرے میں تھے جہاں ڈی جی صاحب بیٹھ رہے ہیں جی، بیٹھنے والے تھے وہاں بخاری شخاری ٹھیک ٹھاک سے چل رہی تھی مگر لائٹ نہیں تھی جی۔ یہاں جو ان کا چیئرمین ہے محمد سر اسماعیل صاحب جی، اس نے الیکٹرک ڈپارٹمنٹ کو فون کیا ہے کہ سر یہاں مہمان آنے والے ہیں، آپ پاور چھوڑ دیجئے، یہااں پاور نہیں ہے۔ تب تک ان کا انورٹر چل رہا تھا، سارے بلڈنگ میں پاور نہیں تھا، کچھ کمروں میں انورٹر کی لائٹ تھی۔ جب جو ہی پاور آیا 10 منٹ کے بعد کچھ سمیل شروع ہوئی۔ یہاں ایس پی میڈم صاحب بھی بیٹھی تھی، بہت سارا عملہ پولیس کا بیٹھا تھا، انہوں نے سنگا کہ کہیں سے کچھ ہو رہا ہے۔ ہم نے ساری بلڈنگ کو گھوم کے نظر ماری مگر کہیں کچھ نہیں ملا۔ کیا آپ کو لگتا ہے یہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے؟ بالکل شارٹ سرکٹ کی وجہ سے یہ ہوا، جو ہی پاور آیا آدھے گھنٹے کے بعد اس کمرے سے آگ نمودار ہو گئی۔ لگ بھگ کتنا نقصان ہوا اور کیا بچے یہاں پہ صحت سلامت ہے؟ بچے ٹھیک؟ بچے بالکل، بچے کو ہم نے پہلے نکالا، بچے صحت سلامت ہے بالکل۔ یہاں پولیس ڈپارٹمنٹ تھا، انہوں نے پہلے بچوں کو نکالا، پھر جو بلڈنگ کا نقصان ہے وہ بہت سارا ہے، بچوں کے جو کپڑے ہیں، کتابیں ہیں، خالی کمپیوٹر روم بچ گیا، باقی جو ان کا احساسات تھا۔ یہاں پر جو ہے جو یہ ہمارا اولڈ ٹاؤن میں باغ اسلام کا ایریا، یہاں پر ہمارا ایک ایٹیم ٹرسٹ ہے، یہاں پر جو آگ نمودار ہوئی ہے تو ہم بھی یہاں پر بر موقع پہ پہنچے سر، تو ہم نے دیکھا یہاں پر ہم جو ہے پہلے ہی ہم میڈیا کرمی خاص کر گلستان نیوز کے ہم بڑے شکر گزار ہیں کہ اولڈ ٹاؤن میں جب بھی کبھی کوئی ایسی واردات ہوئی ہے تو گلستان نیوز جو ہے سب سے پہلے نمبر 1 پہ آتی ہے، ہم ان کے بڑے شکر گزار ہیں تہہ دل سے۔ ہاں، تو دوسری بات یہ ہے سر، جو یہاں آگ کی جو واردات ہوئی ہے اس میں جو ہے سر جے اینڈ کے پولیس کا یہاں اہم رول تھا اور یہاں پر آرمی کے کچھ جوان تھے سر، تو بر وقت یہاں پر کارروائی ہوئی سر اس آگ پہ، اور یہ آگ جو ہے کچھ اس سے پہلے کچھ زیادہ کچھ نقصان ہو جاتا تو بر وقت یہ یہاں پر جو ہے آگ کی جو واردات ہے ختم ہو گئی۔ آپ نے اس سے پہلے بھی ہے جو ہے سر، جو ہے نا سر، اس سے پہلے بھی آپ نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے اس مسئلے کو، یہ جو ہے سر ہماری جو یہاں فائر سروس کی گاڑی ہے، ہم نے پہلے اس سے پہلے بھی چاہے ڈی سی بارہمولہ ہو چاہے اور کوئی ایڈمنسٹریشن ہو، ہم نے ان سے اس سے پہلے بھی اس کے بارے میں کچھ ایسی جو ہے سر مطلب التجا کی ہے، جو ہمارا جو فائر سروس کی جو ایک جگہ ہے وہ مقررہ جگہ یہاں پر ایک کھلا ہمارا ایک ایریا آتا ہے ککر حمام میں، وہاں پر اس کو رکھا جائے تاکہ آپ دیکھ رہے ہو سر اولڈ ٹاؤن۔ یہاں پہ کوئی گاڑی ہے؟ یہاں پر جو ہے سر ہمارے پاس ایک گاڑی ہے جو بنگلو باغ برج کے پاس ہے سر، لیکن وہاں پر جب بھی آپ کو اولڈ ٹاؤن میں کسی جگہ پہ یپر یہ مقامی لوکو طرف ون آو ات آز پلس طرف اخ تقریب منعقد سپدن واجن تو کیا پلس ذمہ دار یت مز ایس ایس پی ورمل تہ شامل تم ات موجود تو یہ فنکشن سپدن برہن ات شارٹ سرکٹ سپدمت یم کن نار ظاہر سپد، تت پولیس سربراہ آر آر سوین اوت واتمت یتھ دوران تمو صورت حالک جائزہ ہیوت، یل زن تمو ات موقع پہ وون پلس محکم طرف یہ ات ادارس بھرپور مدد کرنے یت زن ٹرسٹ کام کار مزید متاثر سپدے۔ بول نہیں رہا ہوں کہ میں اپنے
अफसरों को कह रहा हूँ इसी इत्तेफाक में आप लोग से मदद किए इस बार की आप लोगों को एक हादसा हुआ था तो हमको लगा कि हम अगर मौजूद है तो हम मिल लें, इतना ही कहूँगा। अब हम चाहेंगे क्या पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से अब इनको मदद मिलेगी सर? हम सब जो हमसे हो पाएगा हम करेंगे। ये इस तरीके की जो एफर्ट से जो नेक इंसान नेक काम करते हैं उनकी मदद हर सोसाइटी को करने से आएगा। जाति तौर पे भी हम इसमें यूथ कांग्रेस तरफ मौकस पे कया सियासी कारकुन कांग्रेस पार्टी में शामिल सपद तत लीडरों तो वर्करों तरफ तिहद वालियान इस्तकबाल करने आमुद ये जन वर्करन पे जोर दिन आव तिम गन कांग्रेस पार्टी मजीद मजबूत बनाने बापत काम करें युत जन ज्यादा खोत ज्यादा नौजवान पार्टी में शामिल सपदन। अत मौकस पे पार्टी जिम्मेदारों तरफ वन आमुद जिले बडगमस तल्लुक थवन वालों कईयाओ नौजवान सियासी कारकुनों आज अत पार्टी शमूलियत कर्मज तो प्रत जिलस मज पार्टी तरफ अमे आई तकरीबन हुंद साज करने यथ दौरान नौजवानन हुंद अख बोड़ तादाद कांग्रेस पार्टी मज शामिल सपदन। हारिस अबरार साहब आज ये बड़गाम के काफी लोग जो ज्वाइन हुए हैं, इनकी पहले तो मुश्किलातें काफी हैं जो मैंने सुनी यहाँ पे, जो नए कश्मीर के दावे किए जा रहे हैं कि काफी विकास हुआ है। आज जो मीटिंग थी मेरी बड़गाम के लोगों के साथ हुई है, इन्होंने बताया है कि वहाँ जितने भी मसाइल हैं वो हल नहीं हो रहे हैं, भाजपा के कहने पे काम हो रहा है और जो लोग वहाँ पे विकास चाहते हैं उनके लिए जो काम करने की नीयत है, जो मुझे नहीं लग रहा एडमिनिस्ट्रेशन की है, वो भाजपा के इशारे पे ही यहाँ काम हो रहा है और विकास जो है बिल्कुल भी नहीं हो रहा। नए कश्मीर के दावे जो है खोखले हैं और आने वाले दिनों में हम बताएंगे। जो आरटीआई के हवाले से हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो खुद बताएगी एडमिनिस्ट्रेशन की जो काम है वो क्यों। शुपियनस मज आज भारतीय जनता पार्टी तरफ तकरीबी साज करना आमुत यथ पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे पार्टी अंदर मुख्तलिफ शोबन सत वबस्त वर्करन हंद कामकार साम हन आय तत वर्करन पे जोर दिन आमुत तिम गसन पार्टी मंशूर घर घर वातनावनस हवाले काम करें युत जन ज्यादा खोत ज्यादा लूक भारतीय जनता पार्टी मज शामिल सपदन। को लेके जो हमारे पैन इंडिया प्रोग्राम्स चल रहे हैं उसमें एक ऐसा ये प्रोग्राम है जिसमें एक तो पब्लिक आउटरीच और दूसरा कि सोशल मीडिया और आईटी को हम अपनी पार्टी की तरफ से किस तरह उसको एक पिलर बना के अपनी पार्टी को मजबूत करें और आने वाले इलेक्शंस के लिए जो पब्लिक आउटरीच है इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके पब्लिक आउटरीच कैसे करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो स्कीम्स और जो सहूलियातें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आवाम के लिए और ख़ास तौर पर जो अर्बन एरियाज़ हैं या रूरल एरियाज़ हैं, लोगों तक वो चीज़ें नहीं पहुंच पा रही है और इस प्लेटफॉर्म को सोशल मीडिया को इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके हम लोगों तक किस तरह वो सहूलियातें पहुंचाएं, वो स्कीम्स पहुंचाएं। तो अपने जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन तक ये प्रोग्राम जो है उनको एक शॉर्ट प्रोग्राम में उनको ट्रेन किया जाएगा कि पब्लिक आउटरीच कैसे। जहाँ तक ताल्लुक है बीजेपी का, बीजेपी ने स्टार्ट जो आज का प्रोग्राम किया है, हमारा मुद्दा मकसद यही चीज़ है कि वी विल रीच आउट टू पीपल, स्पेशली कि जो यहाँ के लोग हैं उनसे बात करें, उनकी मुसीबतें जो है या उनकी प्रॉब्लम जो है उनको अपनी स्कीम्स के बारे में भी बताएं। और जहाँ तक ताल्लुक है मीडिया, सोशल मीडिया और आईटी का, हमारा यही चीज़ है कि जितनी भी हमारी मोदी साहब की स्कीम्स है वो भी यहाँ के लोगों को लेकर वो हम लोगों तक पहुँचाएँ ताकि लोगों को भी पता चले कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने उनके लिए क्या। वादी मज ये सेल्फ मेडिकेशन अख नो रिवाज बनोमुत तत माहिर डॉक्टरों तरफ अमे हवाले कत करान वन आमुत सेल्फ मेडिकेशन अकिस इंसान सद बापत सठई खतरनाक तो प्रेत अकिस पज अमे निश परहेज करुन। येल जन माहिर डॉक्टरों तरफ लूकन मशवर दिन आमुत योदवे तिमन जिस्मस मज कुछ किस्मुक तकलीफ बासन आसि तिमन पज डॉक्टर कंसल्ट करित मुफीद तिबी मशवर हासिल करुन युत जन तिमन का जरियर वाति।
देखें, जो सेल्फ मेडिकेशन की बात हम करते हैं, ये वो मेडिसिन्स है जो कोई भी इंसान डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के बगैर लेता है। इनके बहुत सारे मुज़र असरात हैं। मुझे असरात ऐसे हैं कि कुछ मेडिसिन जो पेन किलर्स हैं, अगर ये इंसान प्रेस्क्रिप्शन के बगैर बहुत देर तक ले लेगा, इससे किडनीज़ पे असर हो जाता है। अगर एंटीबायोटिक्स जो इंसान एक डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के बाद लेना चाहिए, अगर वो खुद ही एक पेशेंट ले लेता है, तो इसमें सोसाइटी में जो एंटीबायोटिक्स की रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाती है। तो कोशिश ये होनी चाहिए इन चीज़ों को, जो सेल्फ मेडिकेशन है, इसको हमें डिस्करेज करना चाहिए किसी भी लेवल पे। जब यही मेडिसिन्स जो मूड एलिवेटर्स है कुछ देर के लिए पेशेंट ले लेगा, तो डिपेंडेंस यहाँ तक बढ़ जाती है, जिसको हम फिर एडिक्शन बोलते हैं। तो ड्रग एडिक्शन हो जाती है सोसाइटी में। सेल्फ मेडिकेशन के जितने भी हम मुज़िर असरात बोलेंगे वो बोलने को मिलेंगे, लेकिन बात यही है कि हमें इस चीज़ को सिरे से ही डिस्करेज करना चाहिए समाज। यूनानी हो या मॉडर्न मेडिसिन, सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन या ओवर द काउंटर OTC ड्रग्स लाना, वो खाना, यहाँ पे गांव देहात में यूनानी के क्लिनिक्स हैं, क्लिनिक्स होने या दवाखाने होने अच्छी बात है, बेरोज़गारी है, लेकिन उन तक सिर्फ जाना ये महदूद कीजिएगा कि अगर कोई क्वालिफाइड डॉक्टर, अगर वो गवर्नमेंट आयुष यूनिट्स का, हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का हो, या किसी रजिस्टर्ड यूनानी डॉक्टर का हो, या रजिस्टर्ड आयुर्वेदिक डॉक्टर का या होम्योपैथिक डॉक्टर का हो नुस्खा, तो उस नुस्खे के एतबार से दवाएं ले, लेकिन खुद दवाएं ना खाएं, ना खुद के मशवरे से खाएं, ना दवा दुकानदार के मशवरे से खाएं दवाएं। बटनूर त्राल के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवे इलाकस मज लूकन तिब्बी सहूलियत आयतन थावनस हवाले हेल्थ सेंटर कायम करने आमुद, ताहम छन अत बुनियादी सहूलियत आयतन थावना आमच यम किन और इन वाले मरीजन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मकामी लोगों तरफ ये इंतजामिया मांग करना आई हेल्थ सेंटरस मज बुनियादी सहूलियत आयतन थावनस हवाले गसन संजीद कदम तुलने इन तत महकमे सेहत के जिम्मेदारों तरफ वन आमुद अमे हवाले आला हुकामन जान दिन आमज तो उम्मीद जल्दी इन मरीजन बुथिन वल मुश्किल दूर करने। जनाब अली अत गवर्नमेंटन बार बार वो गवर्नमेंटन दितुन धोखा है आज पगह ये मंजर लेडी डॉक्टर बे नर्स तम बाज़ाब्त पे सुबह 10 बजे 4 बजे नीरान, तम फर्स्ट क्लास पी ड्यूटी अंजाम दिवान, मगर तम क्या करन यम सात तिमन ये कह चीज़ अवेलेबल तम क्या कर। एक्सरे मशीन गस जनाब ECG मशीन गस ये एम्बुलेंस गस अगर गवर्नमेंटस तुद वसात LGS कर ये गुजारिश ये दितन डॉक्टर 2-3 बे दितन ये एम्बुलेंस क्या गई मुश्किलात दूर। ये इलाक गुजर इलाक बोर्ड बार की अपग्रेडेशन की, तो उसके लिए हमने डिपार्टमेंट को ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो पिछले कई सालों में हमारे कुछ PSC गुरेज बंडपोरिक लूक ये गुरेज वादी मज बिजली फराहम करने वरी वादों पे इंतजामिया मांग करान तत जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ गुरेज कन लूकन बिजली फराहम करनस मज कामयाब सपजमज ये जन मुकामी लूकों तरफ इंतजामिया शुक्रिया अदा करान वन आव यदवे इलाकन लूकन बिजली वुचनुक सठे शौक ताहम तमन्ना सरकार तरफ आज पूर करना आमुद, यम सत मुकामी लूक सठे खुश सपदमे। हम गुरेज की आवाम जो कि कल यहाँ पे 24 घंटे की जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यहाँ पे चालू की गई, उसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और खासतौर पर LG मनोज सिन्हा और PDD डिपार्टमेंट और DC बांडीपुरा के बहुत ही मशहूर है कि जिन्होंने कल यहाँ पे बिजली चालू की जो 24 घंटे चलेगी। इससे पहले हमें यहाँ पे केवल अपना 6 से 7 घंटे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मिलती थी, जिससे हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। इसके लिए हम LG एडमिनिस्ट्रेशन और PDD डिपार्टमेंट के बहुत ही मशहूर है। मैं मशहूर हूँ UT इंतजामिया, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी UT के जो हैं उनका, और DC साहब का, PDD डिपार्टमेंट का, जिन्होंने यहाँ गुरेज में जो पावर सप्लाई थी वो रेस्टोर किया कल से, जिसके लिए हम तहे दिल से हुकूमत वक्त और जो ऑफिसर हैं उनके मशकूर हैं कि उन्होंने हमें
जो दृढ़ मांग थी वो हमारी मांग पूरी की, जिसके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मुझे इसका उनके बहुत शुक्रगुजार हूँ, LG इंतज़ामिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने एक शॉर्ट टाइम में जो है मुझे इसमें 24/7 का बिजली जो है पहुँचा दी। वहाँ वो फिर 24/7 चलेगी नहीं चलेगी, बट इतना है कि जो हमारे जेंट्स वहाँ पे चलते थे इस मुश्किल से वो बाहर हो जाएंगे। और यपर शुमाली हंद कपवार के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे महकमे बिजली स्मार्ट मीटर नस्ब करने दौरान वन आव लूकन यी माकूल बिजली फराहम कर ताहम बिजली हज यत गसे जिलक लूक मुश्किल मज हेन आमत तो महकमे बिजली तरफ लूकन हंद मुश्किल दूर करनस हवाले कह कदम तुलने यवान। रहता हूँ जी लोलाब, आदि लोलाब रहता हूँ मैं। पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात करें, एक ही लोलाब की बात तो नहीं कर सकती। पूरे डिस्ट्रिक्ट में भी कहीं भी लाइट का कोई सिस्टम है नहीं, शेड्यूल है ही नहीं कोई। जब से स्मार्ट मीटर लगे तब से तो ज़्यादा ही बुरा हाल हो गया। पहले बोलते कि स्मार्ट मीटर आएंगे, लाइट 24 घंटा रहेगी, वो रहेगी। अब तो पहले से भी बदतर हो गई है, क्यों अब सर्दियों का मौसम है, अब खारे मतलब पानी की ज़रूरत है, गर्म पानी की ज़रूरत है, लाइट की ज़रूरत है, बच्चों को आगे पढ़ने का। ताल्लुक कलारू से है। मेरे ख्याल से 24 घंटों में यही कोई आधे घंटे से भी कम टाइम वक्त के लिए पावर रहता है। ये आज वो बच्चों के एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहे हैं, बिजली की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिजली ना के बराबर होती है हमारे इलाके में। नाजरीन कोशिश खबरनाम जारी, ये निमो तजारती वक्फ।